Well, there has been a massive controversy regarding NEET and the UGC NET examinations today. In the entire country, there was uproar and anger which was seen by the students. They protested throughout the country. But it is the Education Ministry that assured the students that their interest is paramount for them. I'm being joined by the Union Education Minister, Dharmendra Pradhan. Sir, thank you so much for speaking to NDTV. Of course, it's an emotional day for you. The decision that the Education Ministry has taken to cancel the NET examination. Being an Education Minister, what assurances that you can give to the students? We are talking about almost 34 lakh students, both of NEET and the NET. As the Education Minister of India, the students who are protesting, the students who have felt the burden of finances to give these examinations, what you wanted to convey to each and every student of this country who was undergoing this situation? As you rightly said, students' interest is paramount to all of us. Being the in charge of education sector, I am pained with few incidents of last few days. This should not have been happened, but it happened. We have to take some painful and hard decision in the interest of the students. Both the examination are different examination and they have different information of anomalies in both the examination. In one examination, we have some specific information and specific evidences. We have to cancel that examination. We have ordered a CBI inquiry. For the first time, we are facing the influence of dark net in our education examination system, in the entrance system. Telegram has been used. We all know Telegram has no evidence background. From where it has come, who has sent that. We can't track that unless there is proper inquiry. So government has consciously handed it over to CBI. Regarding NEET, NEET is a prestigious examination in our country. Lakhs of students and parents are involved in that process. Few anomalies has came after publication of result and after examination also in last few days. One part was some grace mark issue was there. It has been resolved properly through Honorable Supreme Court's intervention. And another anomalies of particular area has occurred in Bihar, in Patna, but due to successful intervention of Patna police and economic offense wing of Bihar, it has been handled properly. Both the government are talking to each other, exchanging information, and I am confident the problem has been identified and there will be a conclusive decision very soon in that area also. And NEET examination will be very clear. And my responsibility, my concern, my interest is how to protect the interest of our students, the meritorious students. सर, आपने कहा कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है लगभग 4 साल पुरानी संस्था है. उन्होंने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अभी तक स्टूडेंट्स को परीक्षा दिलवाई है, लेकिन कई इनपुट्स रिसीव होते हैं, कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर इस तरीके की मैकेनिज़्म में प्रॉब्लम है तो क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री इस मैकेनिज़्म को भी सुधारने की कोशिश कर रहा है? व्हाट यू विल सजेस्ट? निश्चित रूप में देखिए, एनटीए को 6 साल हो गया. 2018 से ये शुरू हुई है. उस समय में लगा कि देखो, एग्जामिनेशन के लिए हमारे देश में हर एक साल करोड़ों बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं आगे की पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए. पिछले साल ही केवल एनटीए ने 1 करोड़ 30 लाख बच्चों की एग्जामिनेशन किया है. अब तक 80 लाख बच्चों की एग्जामिनेशन किया है. एनोमलीज हुई है, दुर्घटना हुई, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा. हम उससे भागते नहीं हैं, उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं. उसको सुधारें कैसे? निश्चित रूप में सुधारना पड़ेगा. भारत जैसे एक महाशक्ति, भारत जैसे एक बड़ा देश अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएगा. हमने पिछले दिनों में पब्लिक एग्जामिनेशन को कोई डिसरप्ट ना करे, कोई चीटिंग ना कर दे, कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो, उसके लिए हमने कठोर कानून बनाया है. वहाँ से लेके उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट तक हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे.
हम सारे चीज़ों को नज़र रखे हुए हैं। हमारी चिंता हमारे देश के विद्यार्थियों के हित, विशेष करके अंडर प्रिविलेज वर्गों के विद्यार्थियों के हित, छोटे शहर, ग्रामीण, गरीब, ये समाज के जो बच्चे आज मेरिटियस बच्चे आज कहीं ना कहीं अपने मेधा के कारण ऊपर आए हैं, उनकी हितों को सुरक्षा करना सरकार की दायित्व है। कोई भी मेरिटियस स्टूडेंट कोई भी हो, उनके हितों में आंच ना आए, ये हमारी दायित्व है। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को अपील करूंगा, आप भरोसा रखिए, चीज़ों को निश्चित रूप में जो गड़बड़ियाँ ध्यान में आई है वो छोटा होने से भी हमारे लिए बड़ा है, उसको ठीक किया जाएगा। सरकार जीरो एरर की प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। सर, क्योंकि आपने लगातार कहा है कि मैकेनिज्म को हम सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 0.001% नेग्लिजेंस भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स का कहना है कि आए दिन होता रहता है, पहले भी कई बार परीक्षाएं में पेपर लीक्स हुए हैं। कब जाके रुकेगा सर? स्टूडेंट्स आज ये आपसे जवाब भी मांग रहे हैं। देखिए, मैं आज ए पेरेंट, एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ एजुकेशन, मैं आज स्टूडेंट्स की मन की पीड़ा को मैं समझता हूँ और मैं भी दायित्व लेता हूँ, मैं भी चिंतित हूँ। और ये डेमोक्रेसी है, उनकी मन की बात को समझना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। उनके आक्रोश तो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर है, मैं उसको माथा नम्र करके सुनता भी हूँ, सुनना ही पड़ेगा, दायित्व हमारा ये है, उनको संभालना पड़ेगा। ये विषय से हम आंख चुरा नहीं सकते हैं, उसको सामना करना पड़ेगा, आवश्यक सुधार करना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, कठोर से कठोर कदम भी उठाना पड़ेगा। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। सर, क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है? जिस तरीके से IC4 की तरफ से इनपुट्स दिए गए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फिर उसके बाद एक्ट किया, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और आगे भी? देखिए, सरकार एक होलिस्टिक एंटिटी करके काम करता है, एक ही शरीर के रूप में काम करता है और हम सारे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सबके अलग अलग काम बंटे हुए। आज की आधुनिक समय में चुनौती भी बढ़ी है, उस चुनौती को सरकार मिलकर सामना करता है और आने वाले दिनों में उसमें और कैसे बेहतरीन व्यवस्था हो पाएगा, इसकी भी हम दायित्व लेंगे। सर, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एश्योर कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को कि भरोसा रखें, उनका करियर पैरामाउंट इंटरेस्ट है आप लोगों के लिए। आपने बोला कि देयर शुड बी नो पॉलिटिकल ब्लेम गेम इन ऑल ऑफ दिस, बट टुडे सेवरल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग RJD, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हिमसेल्फ डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इस पर दोषी है। तंज कसा उन्होंने, रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं मोदी जी, लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पाते। क्या जवाब होगा आज आप? देखिए, मेरे आज चिंता कुछ नहीं है, मेरे लाखों विद्यार्थियों की मन स्थिति ठीक रहे, कोई अफवाह, कोई झूठ, कोई तनाव उनको प्रभावित ना करे। इसलिए मैं इस सेक्टर के इंचार्ज के नाते मैं आज राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता। मेरे दायित्व है सभी की मन ठीक रहे, सबकी विश्वास बना रहे। देश एक डेमोक्रेटिक देश है, उसमें आस्था और विश्वास से देश चलती है। और भरोसा रखिए, अभी ये सरकार आप ही के हैं, आप ही के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपके मन को समझने के लिए। Thank you so much for speaking to us. So that was direct assurance coming in from the Education Minister Dharmendra Pradhan, जिनका साफ कहना है कि करियर और स्टूडेंट्स का फ्यूचर उनका पैरामाउंट इंटरेस्ट है और इसके लिए किसी भी तरीके की लेतलाली नहीं चलेगी। साफ तौर पर कोई भी कदम अगर उठाना पड़े तो एजुकेशन मिनिस्ट्री और सरकार उनके इंटरेस्ट के लिए ज़रूर उठाएगी। दिस इज ईश्वर, NDTV।